ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ جمعے کی دوپہر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے خوبصورت بنگلے قطار میں کھڑے دھوپ نرم گرم سیکتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کے برآمدے کے دروازے پہ مور چال کی تختی نصب تھی۔ اندر جاؤ تو لاؤنج میں گہما گہمی تھی۔ آج جمعہ تھا اور جمعہ ویسے بھی پاکستان کی ساری ندرت بہنوں کا یوم بریانی ہوتا ہے، سو اس کچن میں رونق لگی تھی۔ ندرت ایک طرف سیم کو برتن لگانے کا کہہ رہی تھی تو دوسری طرف رائتا پھیرتی حنین کو تیز ہاتھ چلانے کا۔ زمر کڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا اپنے فون پہ لگا تھا اور بڑے ابا ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں ڈور بیل بجی۔ ایک دفعہ ذرا سی گھنٹی باوا کا انداز دہی پیٹتی ہونا کے ہاتھ میں اس نے چہرہ اٹھا کر اطراف میں دیکھا۔ جمعہ بریانی، ساری فیملی کا اکٹھا ہونا اور پھر ڈور بیل۔ کس کی کمی تھی؟ کس نے آنا تھا؟ حنین کے سارے وجود میں خوشگوار لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک دم سب چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ فارس دروازہ کھولنے اٹھ گیا تھا مگر وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ پلیز مجھے کھولنے دیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، پھٹتے جذبات سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ فارس مسکرا کر رک گیا۔ اس نے آج ہی آنا تھا۔ حنین بھاگتی ہوئی باہر آئی، پورچ کا دروازہ کھولا اور پھر گیٹ کی طرف لپکی۔ کوئی گیٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنا نے دھڑکتے دل اور مسکراتے چہرے کے ساتھ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور حنین کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ساری دنیا ہی منجمد ہو گئی، گویا برف کا اجڑا ویران صحرا بن گئی ہو۔ ہیلو حنین، باہر کھڑے ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ 3 پیس گہرے سیاہ سوٹ میں ملبوس بجی چہرے والا ہاشم وہاں تنہا تھا۔ حنین کی نظریں اس کے عقب میں دوڑیں۔ پیچھے اس کی کار کھڑی تھی اور باہر چند گارڈز۔ حنین کا چہرہ بجھ گیا، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ ہاشم بھائی آئیے۔ تم اب مجھے ٹیکس نہیں کرتی؟ کوئی ناراضی ہے کیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اندر داخل ہوا۔ وہ ملے جلے جذبات میں گریز کے ساتھ چلتی آئی۔ اب مصروف ہوتی ہوں بہت، آپ اس دنیا میں موجود ہیں یہ تک بھول جاتا ہے۔ برآمدے کے سٹیپس چڑھتے ہاشم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری موجودگی کسی کو نہیں بھولتی۔ پھر سٹیپ پہ چڑھا، آگے بند دروازہ تھا اور اس پہ نصب تختی مور چال۔ اس نے زیر لب پڑا، چھٹی کا گھر۔ حنین بولی۔ ہاشم نے انگلی سے تختی کی طرف اشارہ کیا، یہ ڈھیلی ہے، مضبوطی سے جمی نہیں ہوئی، ذرا سی ٹھوکر سے گر جائے گی۔ اندر بتا دو میں آیا ہوں، شائستگی سے کہتا وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ حنین تیزی سے اندر آئی، دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ ہاشم بھائی آئے ہیں۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے پھولے سانس کے ساتھ اطلاع دی۔ لمحے بھر میں تمام حرکات رک گئیں، آوازیں بند ہو گئیں۔ زمر ندرت کچن سے نکل آئی۔ ابا فارس اسے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے زمر کو ہوش آیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، فارس تم اسے اندر لاؤ، ڈائننگ ہال میں ہم کھانا لگاتے ہیں۔ وہ تیز تیز ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ حنا، سیم، بھابی، ابا سب سن لیں، کوئی کچھ ظاہر نہیں کرے گا، پہلے کی طرح نارمل رہیں گے سب۔ اوکے؟ آنکھیں دکھا کر سختی سے وارن کیا۔ سب متفق تھے۔ فارس منہ میں کچھ چباتا بے نیازی سے اٹھا، گویا کچھ سنا ہی نہ اور باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد تمام گھر والے طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیاں سنبھال رہے تھے۔ جب فارس ہاشم کو لیے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، ہاشم مسکرا کر سب سے ملا، حال احوال دریافت کرتے ہوئے کرسی کھینچی۔ ابا کی سربراہی کرسی کے بائیں طرف، اس کے مقابل فارس بیٹھا تھا۔ ہاشم کے برعکس وہ رف سا سویٹر اور جینز میں ملبوس تھا، کرسی کھینچتے ہوئے بھی موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ میں غلط وقت پہ آ گیا شاید، وہ سب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب خاموش رہے۔ ندرت اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، سو برتن درست کرتی رہی۔ حنین سر جھکائے نیپکن ڈوڑتی رہی۔ زمر لمبوں پہ مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ ابا کے تاثرات بھی تنے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا کس نے کہا ہے؟ فارس نے کندھے اچکائے اور بریانی کی بھاپ اڑاتی اشتہا انگیز مہک والی ڈش اٹھا کر سامنے رکھی۔ وہ چہرے سے سنجیدہ اور قدرے بے نیاز لگتا تھا، بہت دن سے آنا چاہ رہا تھا، آج ہی وقت نکال پایا۔ ہاشم چمچ کاٹا سنبھالتے مسکرا کر کہنے لگا، آپ لوگ ٹینس لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ زمر کا دل زور کا دھڑکا، جلدی سے مسکرا کر کہنے لگی، نہیں دراصل آپ کی طبیعت کا سنا تھا تو۔ مگر فارس اس سے پہلے ہی بول اٹھا، ٹینس کوئی نہیں ہے، بس سب کو علم ہو گیا کہ تم نے میری بیوی اور بھائی کو مارا تھا اور آف کورس سعدی کو بھی زخمی، اغوا، واٹ ایور، وہ سب کروایا تھا۔ رائتا کہتے ہوئے اس نے رائتے کا ڈونگا ہاشم کے سامنے رکھا۔ سب ایک دم بے یقینی سے فارس کو دیکھنے لگے۔ زمر تو بالکل شل رہ گئی، صرف ایک شخص نے جیسے کوئی اثر ہی نہ لیا اور وہ ہاشم تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی مسکراتا رہا اور نظریں فارس پہ جمی رہیں۔ پھر اس نے سر کو ذرا سا خم دیا، ظاہر ہے، اور چاول پلیٹ میں نکالے اور ذرا سا رائتا اوپر ڈالا۔ سب کے سانس رکے ہوئے تھے۔ پھر ہاشم نے چہرہ اٹھایا تو اس پہ مغموم سا تاثر تھا، آنکھوں میں سادگی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، آواز میں افسوس تھا، سب جانتے ہیں۔ فارس نے اسی بے نیازی سے کندھے اچکائے، موبائل ایک طرف دھرا اور اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ انسان بہت سے کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے، میں نے بھی غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں۔ وارث کو رک کر سلاد کے باؤل سے چند کھیرے اپنے
प्लेटर में निकाले। मैं नहीं मारना चाहता था मगर खावर मजबूर हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। चावलों का चम्मच मुंह में रखा, चंद लम्हे चबाया, फिर नुसरत को देखा जो उसे गुलाबी पड़ती आंखों से देख रही थी। आप वाकई बहुत शरीफ, बहुत बेहतरीन शेफ हैं। खैर, फारिस की तरफ नजरें फेरी। पूर जरताशा वो कोलेट्रल डैमेज बन गई। इसने हमारी बातें सुन ली थी और मिसेस उमर के लिए मुझे वाकई अफसोस है। जुमर सुलगती आंखों से उसे देखने लगी। उसका तनफ्फुस तेज हो रहा था। फारिस ने चावलों में चम्मच चलाते हुए कंधे झटके। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। रहा शादी तो मुझे इसमें हमले का इल्म नहीं था। हाँ, जब पता चला तो मैंने इसको एक महफूज जगह भिजवा दिया, उसका ख्याल रखा। वो भी उतना ही नाराज है जितना कि आप लोग, मगर ये आप सबका हक है। वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा, फिर जाहिर है वो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना चाहेगा। हालांकि मैंने उससे मना किया था। अभी जब मैं कैंडी में उससे मिला था, फारिस ने प्लेट में चम्मच चलाते हुए नजरें उठाकर हाशिम को देखते बताया, मगर वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था। सो मेरा ख्याल है हाँ, वो कोर्ट जाएगा, इसका हक है। हाशिम ने गहरी सांस ली। वो दोनों यूं गुफ्तगू कर रहे थे जैसे दूसरा कोई वहां मौजूद ही ना हो। मगर मैं अपने किसी गुनाह को जस्टिफाई नहीं करूंगा। आप मुझे कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, ले जाएं, मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसने रुककर एक और चम्मच मुंह में रखा और चबाया। सब सांस रोककर उसे देखने लगे। इससे हम दोनों खानदानों का नुकसान ही होगा। आप अच्छे लोग हैं, मैं भी अब पहले वाला आदमी जैसा नहीं रह गया। खुद को बदल रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा आप लोग मुझे माफ कर दें। मैंने अपने किए की बहुत सजा भुगत ली है, सारी जिंदगी भुगतूंगा, मगर इंतकाम और इंसाफ की नई जंग लड़ने का फायदा कोई नहीं है। आप लोगों ने मेरी वजह से बहुत सफर किया है। मैं नहीं चाहता कि आप मजीद दुख उठाएं। प्लेट पर खिसकाई तो फारिस ने इशारा किया, और लो ना। नहीं थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए सादी यूसुफ फाउंडेशन बनाई है ताकि मजीद किसी खानदान को इस सब से न गुजरना पड़े। आगे आप लोग जो भी करना चाहें, आपकी मर्जी। नैपकिन उठाकर हाथ साफ किए। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं, माफ़ करें या सज़ा दें। मैं पुरानी बातों और हिसाबों में अब नहीं पढ़ना चाहता। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। थैंक यू। श्योर, वेलकम। हाशिम खड़ा हुआ तो फारिस भी खड़ा हुआ। हाशिम ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे काम है कुछ, अब मैं चलता हूँ। फारिस ने इससे हाथ मिलाते हुए सर को खम दिया। मैं शादी को इसके इरादे से बाज रखने की कोशिश करूंगा हाशिम, मगर कोई वादा नहीं कर सकता। हाशिम अलविदाई कलमात कहकर मुड़ गया और वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। बिरयानी ठंडी हो गई थी और जज्बात गर्म उबल रहे थे। डाइनिंग हॉल में सबको सांप सूंघा हुआ था, सब शल थे। नुदरत बदिक्कत बोल पाई, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। तुमने उसे क्यों बताया? जुमर ने हकलाते हुए फारिस की तरफ रुख फेरा। वो बेयकीन थी। वो इदरीस और मेरे बारे में पता करवा रहा था। उसको शक था, मैंने कंफर्म कर दिया। वो इसी रग़बत से चावल खा रहा था। उन्होंने हमसे माफी मांगी। हुना भी बेयकीन थी, मुतहय्यर थी। पता नहीं। अब्बा तलखी से बोले। एकदम बाहर किसी शय के गिरने की आवाज आई। हुना एकदम उठकर बाहर भागी। दरवाजा खुला और पोर्च के मार्बल के फर्श के दरवाजे की तख्ती गिरी पड़ी थी। वो इतनी जोर से दे मारी गई थी कि 2 टुकड़ों में टूट गई थी। बंद गेट के बाहर खिड़कियों के जन से गुजर जाने की आवाज सुनाई दी थी। मुझे समझ नहीं आ रही वो माफी क्यों मांग रहा था, और तुम उससे किस तरह बात कर रहे थे? अंदर जुमर खनूज गुमगोसी बोल रही थी। वो माफी नहीं मांग रहा था जुमर। अपने ऑफिस की इमारत की बालाई मंजिल की राहदारी में तेज तेज चलते हाशिम ने टाई ढीली की। इसका चेहरा फरते जज्बात से सुर्ख टिमटिमा रहा था। 2 आदमी इसके साथ चल रहे थे और मुसलसल इसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगे थे। अपनी कुर्सी और कैबिन में काम करते वर्कर्स रुक कर उसको देखने लगे थे। ठोकर से नौशरवा का ऑफिस का दरवाजा खोला। वो मुझे चेक कर रहा था कि मेरा गुस्सा कैसा है, कि मैं वो पहले वाला इंसान हूँ या नहीं। सामने मेज के पीछे नौशरवा बैठा मोबाइल पे लगा था। आवाज पे नागवारी से चेहरा उठाया। हाशिम किसी वैशी जानवर की तरह इसकी तरफ लपका और उसे गिरबान से झपट कर पकड़ा और खड़ा किया। फिर एक के बाद दीगरे 2 थप्पड़ इसके चेहरे पे चढ़ दिए। क्या बकवास की थी मैंने? सादी यूसुफ को मत छोड़ो, मुझे संभालने दो। एक तीसरा थप्पड़ दे मारते हुए वो चिल्लाया था। वो जांच रहा था कि हम कितना जानते हैं, परख रहा था हम कितने अहल हैं, महसूस कर रहा था कि हमारे आसाब कितने मजबूत हैं। हाशिम ने हक्का बक्का से खड़े शेरू को परे धकेला और गुस्से से अलग फाड़ के चिल्लाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, हम सबको बर्बाद कर दिया। मेरी बरसों की साख इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। और वो कह रहा था कि सब समझ गया है, पहले जैसा आदमी नहीं है जो हमारे हाथों बेवकूफ बन जाएगा। नौशेरवा मुंह पे हाथ रख के हक दक शल सा खड़ा था। हाशिम एकदम आगे बढ़ा और उसकी मेज की सारी चीजें जोर से हाथ से मार कर नीचे गिरा दी। वो नीच घटिया लोग जिनको मैं अपने बराबर कुर्सी पे बिना बिठाऊं, वो सब जानते हैं। सुना तुमने, जिस उम्र को तुम ऑफिस में लाते थे वो सब जानती है, और तुम्हारी वजह से मैं इनके हाथों धोखा खा गया। तुम्हारी वजह से उनको इतनी मोहलत मिल गई कि वो तैयारी कर लें। खून शाम आंखें नौशेरवा पे गाड़े वो गुर्रा रहा था। फिर इसने कोट उतार कर पर देखा और वो कह रहा था कि हम इसके साथ जंग करके इसका नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मैं मुत्तफिक हूँ वैसे इस बात से, मगर चूंकि शादी से वादा किया है तो फिर निभाना होगा।
जवाहरात तेजी से ऑफिस में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर अंगश्ते बदंदा रह गई। मुंह तक खुल गया, बिखरी टूटी चीजें मुंह पे हाथ रख के खड़ा नौशेरवा और शर्ट की आस्तीन चढ़ाता गुस्से से चीख चीख कर उसे गालियां निकालता। हाशिम, मेरा पावर प्लांट तबाह हुआ चंद दिन पहले, मैं एक और स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर थैंक्स टू नौशेरवा कारदार, आधा मर्द नौशेरवा कारदार, इसने मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। जवाहरात को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा हाशिम क्या हुआ है। फारिस जानता है, वो सब जानता है, हमेशा से जानता था, और वो लोग हमारे खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। जवाहरात का सांस थम गया था और वो कह रहा था कि वो मूव ऑन करने के लिए तैयार है, वो अगले हर मरहले के लिए तैयार है, वो हर शय को संभालने के लिए तैयार है। ओ गॉड हाशिम, जवाहरात परेशानी से इसके करीब आए। अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? मैं हाशिम कारदार हूँ, ये मेरी जिंदगी की पहली जंग नहीं है मम्मी, मैं इस पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। वो एक एक रुपए के मोहताज होकर 24 घंटे में सड़क पे आ जाएंगे, मैं तैयार हूँ। नफरत तरक्की से चबा चबा कर कहते इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में रईस समेत दूसरे अफराद को अंदर आने का कहने लगा। अफरा-तफरी पुकार बगदर पूरे ऑफिस में गोया कयामत आ गई थी। हाशिम ठीक सोच रहा है, वो तैयार है, वो हमेशा ही तैयार होता है जुमर। वो एक अच्छा आदमी नहीं है, मगर वो एक अजीम आदमी है। लेकिन उसको सिर्फ एक बात मालूम नहीं। इस दफा की कुर्सी धकेल कर उठते हुए फारिस मुस्कुराकर बोला था, मैं भी तैयार हूँ। अदावतों के अजाब सूरज ने इतनी मोहलत न दी के मोहसिन, हम अपनी जलती जमी के सर पे कोई बगोला ही तान देते। जुम्मे की इस दोपहर यूं लगता था गोया बर्फीले बादलों की तह पिघल कर फिजा में गायब हो गई हो और कहीं अचानक से सुनहरी सूरज आसमान पे नमोदार होता पूरे शहर को सोने का खोल चढ़ा गया हो। अपने ऑफिस के खुले दरवाजे पे हाशिम इस तरह ढीली टाई और चढ़े आस्तीन के साथ खड़ा वो चंद अफराद को अंदर जाने का रास्ता दे रहा था। आखिरी दाखिल होने वाले हारून उबैद थे। इनके पीछे अहमद आने लगा तो तुम अभी इसी वक्त फायर्ड हो। रौनक से उंगली से दफा हो जाने का इशारा किया। अहमद साकित रह गया। मगर सर, तुम फारिस के दोस्त हो, मुझे एतबार नहीं रहा तुम पर, इस वक्त मेरा एतबार तुम कमा नहीं सकते, सो आउट। हाशिम गुस्से से कहकर इसके मुंह पर दरवाजा बंद करके आ गया। जवाहरात अपनी जगह छोड़कर खड़ी नजर आ रही थी और नागवारी से सामने बैठते हारून को देख रही थी। फिर हाशिम को देखा। हारून को क्यों लाए हो? ताकि ये खुश हो जाए, इनकी वजह से हमारा पावर प्लांट तबाह हुआ। हाशिम, हमें इस वक्त एक होना है मम्मी, अपनी सियासतें बाद में कीजिएगा। वो सर्द मेरी से कहकर आगे आया। हारून काफी महजूज होते नशिस्त संभाल चुके थे। बाकी लोग हाथ बांधे खड़े थे। नौशेरवा सर झुकाए बैठा था, इसका चेहरा सुर्ख था। आज हाशिम ने भी वही गाली दी थी, मगर वो इसे 3 गोलियां नहीं मार सकता था, तो चॉइस हमेशा इंसान के हाथ में होती है। स्कैंडल को इसके शुरू होने से पहले कुचला जाता है और हम सबको मिलकर इसे कुचलना होगा। मैं हाशिम कारदार हूँ और स्कैंडल्स मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर मैं डूबा तो तुम सब भी मेरे साथ डूबोगे। अपनी सीट के पीछे खड़े वो माथे पे तेवरियां डाले बुलंद मगर आईनी आवाज के साथ कह रहा था। 1 घंटे के अंदर वो अपनी सीट के पीछे खड़ा था, हुक्म से कह रहा था, इन लोगों को हमारे पाई का मोहताज कर देंगे, इनके पास महीने भर जिंदा रहने का खर्चा भी नहीं होगा। फिर इसने फोन उठाया और कान से लगाया। थोड़ी देर बाद वो फोन में कह रहा था, चंद आईडी कार्ड्स की कॉपीज भेज रहा हूँ। कदीर साहब, यूसुफ खान के इन आईडी कार्ड से वापस तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देने चाहिए। आपके पास 1 घंटा है। जब इनके सारे असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे तो इनके पास हमसे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनको अपनी फिक्र पड़ जाएगी। हारून ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। जवाहरात हूँ कहकर रह गई। मुझे इस मुल्क में, हाशिम अब रईस से कह रहा था, इनकी एक जमीन, प्लॉट, मकान, सबका हिसाब चाहिए, घर जिसमें वो रह रहे हैं। हारून, तुम इसके मालिक से राब्ता करो, हम अभी इसी वक्त इसको खरीद रहे हैं। शाम तक इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। और तुम सामने खड़े 3 अफराद की तरफ मुतवज्जो हुआ जो इसको हिदायत के मुंतजिर थे। अपने सारे आदमी ले जाओ। शहर के बदतरीन फरारी मुजरिम जो किसी से न डरते हो, कोई पुलिस, कोई चेक पोस्ट, तुम्हें आज के दिन कोई नहीं रोकेगा। इनके घर बाहर जाकर अपनी गाड़ियां रोको और गोलियां चला कर उनकी दीवारों को छलनी कर दो। सारे शीशे तोड़ दो। जब मुतवक्का खौफ व हिरास फैल जाए तो वापस आ जाना। ऑफिस में हर कोई अपने काम में लग गया। हारून फोन करने बाहर चले गए थे। हाशिम भी मोबाइल पे मसरूफ था। एक नौशेरवा था जो सर झुकाए बैठा था, बिल्कुल चुप, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से। हारून ने अपनी जगह पे दोबारा बैठते हाशिम को मुखातिब किया। इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, कोई असासा ऐसा नहीं है जिस पे कब्जा करके हम इनकी कमर तोड़ सकें। वाहिद बची हुई प्रॉपर्टी इसने आपको खुद ही फरोख्त कर दी थी, वो इनेक्सी जिसकी मालियत के करोड़ों रुपए फारिस गाजी की किसी अकाउंट में पड़े होंगे। इस वक्त महजूज अंदाज में जवाहरात को देखा जो पहलू बदल कर रह गई। मैंने अपनी आना के पीछे वो इनेक्सी खरीद ली। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी ही रकम से हमारे खिलाफ केस लड़ेगा। और वो घर, हाशिम ने तेजी से बात काटी, वो किसके नाम है? वो चंद दिन पहले इन खातून से असददान ने खरीदा है, जिनको बदनाम करने में तुम्हारी माँ ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हम इस औरत से वो घर नहीं खरीद सकते, हम इससे बात भी नहीं कर सकते। वो गहरी सांस लेकर कह रहे थे और हाशिम ने गुस्से से मेज पे रखा पानी का गिलास उठाकर दीवार पे दे मारा। कांच के टुकड़े फर्श पे जा गिरे। सब खामोश हो गए। फिर वो फोन उठाते हुए बोला,
लेकिन वो इस रकम को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जबकि इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। तो वो इस रकम से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी घंटी जा रही थी। हाशिम के चेहरे पे जोश था, उम्मीद थी। जी कदीर साहब, काम हो गया? राब्ता मिलते ही वो तो उसे बोला गुड। वो मुस्कुराया तो इनके तमाम अकाउंट्स फ्रीज हो गए। वेरी गुड। इसने विक्ट्री की 2 उंगलियां बनाकर ऊपर उठाई। जवाहरत ने सुकून की पहली सांस खारिज की। यानी अब वो इन बैंक अकाउंट से कुछ नहीं ले सकते। जबरदस्त। वैसे अंदाजन कितना सरमाया फ्रीज हुआ होगा? और फिर मुस्कुराहट गायब हो गई। 2037 रुपए। आप मजाक कर रहे हैं? हाथ के इशारे से बाकी लोगों को खामोश होने को कहा। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? उनके अकाउंट्स खाली क्यों हैं? पिछले 1 माह में उन्होंने तमाम सरमाया कहाँ मुंतकिल कर दिया? अब की दफा इसने फोन आहिस्ता से पलट डाला था। फारिस अपनी तमाम रकम कहीं और मुंतकिल कर चुका है और हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि किधर। सर प्लीज ये देखें। हलीमा तेजी से ऑफिस में दाखिल हुई और इससे पहले कि हाशिम इसको झल्लाकर बाहर जाने को कहता, इसने एक टेप मेज पे रखा। स्क्रीन पर मौजूद चेहरा देखकर हाशिम चौंक कर सीधा हुआ। मेरा नाम है सादी यूसुफ। उस सड़क किनारे चलते हुए सेल्फी कैमरे से अपने चेहरे की वीडियो बनाता तलखी से कह रहा था, मुझे 8 माह तक श्रीलंका के शहर कोलंबो के होटल नाम लेके तहखाने में कैद रखने वाले कारदार खानदान और हारून उबैद को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं वापस आ गया और मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अदालत जाकर बताऊंगा कि मुझे गोलियां मारने वाला नौशेरवा कारदेर था। मुझे अगवा करके हब से बेजा में रखने और नेस्काम प्रोजेक्ट के हसास रात पूछने के लिए तशद्दुद करने वाला मशहूर जमाना पीपीएस आईपीपीएस हारून उबैद और हाशिम कारदार थे। वो चलते चलते पूरे एतमाद से बोलता जा रहा था। चेहरे पे सख्ती और आंखों में तपिश थी। और अगर मुझे कत्ल कर दिया गया या गायब कर दिया गया तो हाशिम कारदार और हारून उबैद को पकड़ा जाए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी थी, सनसनीखेज भी थी। जहां हाशिम के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था वहां हारून की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई थी और वो सीधे होकर बैठ गए थे। अपने नाम पे चेहरे की रंगत उड़ गई थी। जवाहरात बिला आखिर हल्की सी मुस्कुराई थी। जलते दिल पे फुहार पड़ी थी। नौशेरवा जो इस सारे असना में सर झुकाए बैठा था एकदम खड़ा हुआ। मोबाइल पे कुछ देख रहा था। भाई लोग इस वीडियो के नीचे मेरी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। मेरी कोई प्राइवेसी है? ये सब मुझे बदनाम कर रहे हैं। इसका चेहरा फक था और इस पे हवाइयां उड़ रही थी। फिर वो लपक कर हाशिम के पास आया। मुझे इस सब से निकालें भाई, प्लीज कुछ करें। इसके चेहरे पे इल्तिजा थी, सारी हटदर्मी, वो पूरा मर्द बनने का जोम सब गायब था और वो बौखलाया हुआ लगता था। हाशिम ने एक कहर आलू नजर उस पर डाली। हाँ, एक इसी काम के लिए है तुम्हारा भाई, मगर बेफिक्र रहो, हर दफा की तरह तुम्हारा फैलाया गंद मैं साफ कर लूंगा। और फोन उठाकर इन अफराद को कॉल करने लगा जो इसने फारिस के घर के तरफ रवाना किए थे। उनके घर के सारे शीशे तोड़ डालो। उन्होंने वीडियो बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की है। इतनी गोलियां बरसाना कि उनकी दीवारें छलनी हो जाएं। असर नौ ताकीद करता वो कह रहा था, मैं खाकर ठोकर अभी तक हौसलामंद हूँ। ये ठोकर जो तुम्हें लगती तो तुम खुद बिखर जाती। फरवरी की वो गर्म दोपहर इस बंगले की सब्ज बिलों को भी झुलसाए जा रही थी। लाउंज की खिड़की का बैरूनी शीशा सुनहरी रोशनी को मुनक्किस करता चमक रहा था। इस गर्म शीशे पे तुम अपना माथा टिका कर अंदर झांको तो डाइनिंग टेबल से सब उठकर अब लाउंज में आ बैठे थे। नुदरत अपने कमरे में जा चुकी थी। अब्बा फिक्रमंदी से कभी फारिस को देखते जो टांग पे टांग जमाए सुकून से बैठा था और कभी जुमर के जो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। हुनैन और सैम सामने सोफे पे बैठे खामोश मुस्तरिब थे। सादी को घर आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? जुमर को बेबस सा गुस्सा आने लगा। हाशिम सादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये वो पहला काम नहीं है जो वो करेगा। फारिस ने सेल फोन से चेहरा हटाकर नफी में सर हिलाकर कहा। जुमर रुक कर उसे देखने लगी। सब उसे देखने लगे। फिर वो क्या करेगा? फारिस ने टांग से टांग हटाई। एक बूट मेज पे रखा, फिर कैची सूरत दूसरा बूट उसके ऊपर जमा दिया। जरा आरामदेह अंदाज में बैठा और मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टाइप करते हुए बोला, वो सबसे पहले अपने सबसे काबिल एतबार मुलाजिम और दोस्तों को इकट्ठा करेगा और जिन पर एतबार नहीं उनको निकाल देगा। अहमद शफी की तो आज हुई छुट्टी। अच्छा फिर? उन्होंने दिलचस्पी से पूछा। फिर ये कि वो अपने इत्तेहादी और खुद अपने आप को ये बताएगा कि वो हारा नहीं है। एक लंबी तकरीर करेगा। मैं इसे बरसों जानता हूँ, मैं इसके तरीकों से वाकिफ हूँ। वही काम करेगा जो वो हमेशा से ऐसे मौके पे करता आया है दूसरे लोगों के साथ। जाहिर है कसन किसका है? जुमर क्लस कर बोली। फारिस ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर सर को ताइदी अंदाज में खम दिया। फिर वो अपने गुलामों को हुक्म देगा कि यूसुफ खानदान के 1 घंटे के अंदर अंदर कमर तोड़ दी जाए। फारिस के अल्फाज पे हुनैन की आंखें पहली जुमर भी सीधी हुई। मगर कैसे फारिस? वो हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देगा। इसके स्टेट बैंक में जितने दोस्त हैं इतने हमारे पूरी दुनिया में रिश्तेदार नहीं है। मोबाइल पे हाथ चलाते हुए आम से अंदाज में बता रहा था। हमारे बैंक अकाउंट्स जुमर बेदम सी होकर सोफे पे गिरी। मेरी सारी सेविंग्स, अब्बा के पैसे सब बैंक में। मैं इतनी जल्दी कैसे निकलवाऊंगी सब? खैर अब तक वो इन्हें फ्रीज कर चुके होंगे। फारिस ने शाने उठकाया। जुमर की रंगत जर्द पड़ने लगी। फारिस ने नजर उठाकर उसे देखा। वैसे तो जुमर भी आप मुझे इस काबिल नहीं समझती, मगर थोड़ी बहुत अकल मुझ में है। मैंने हमारा सारा पैसा कुछ अरसे कबल चंद ऑफ शोर बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया है। वो इसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। जुमर को अचंभा हुआ। मगर तुम मेरे बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हो? तुम्हें मेरी पिन तक मालूम नहीं? फारिस ने इस बात को सर को खम दे दिया।
بالکل आपकी पिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे कतई मालूम नहीं। हुनैन ने मुस्कुराहट छुपाने को सिर झुका लिया और अब्बा ने हंसी रोकने को चेहरा मोड़ लिया। अलबत्ता सैम के दांत निकल आए थे। जुमर के गाल गुलाबी पड़े। तनदही से फारिस को देखकर बोली, मुझे अपनी एक एक पाई वापस चाहिए। अच्छा खैर, मामू अकाउंट फ्रीज करने की नाकाम कोशिश के बाद वो क्या करेगा? उन्होंने मौजू बदलना चाहा। वो हमें हमारे घर से बेदखल करके सड़क पे लाने की कोशिश करेगा। वो कैसे? वो हमारा घर खरीदना चाहेंगे। हमारा घर? अगर उन्होंने हमारा घर खरीद लिया तो हम कहाँ जाएंगे? जुमर फिर से परेशान लगी। वो जितना खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश करती, इतनी मुस्तरिब हो जाती। जवाब में सबने खामोशी से फारिस को देखा जो अपने फोन को देख रहा था। हम यही रहेंगे क्योंकि मैं ये घर एक ऐसी शख्सियत के हाथों फरोख्त करवा चुका हूँ जिनसे वो बात तक नहीं कर सकते फिलहाल। और साथ ही इन खातून का नाम बताया जिस तरह वो इत्तलात दे रहा था। और सैम हुनैन दबी दबी मुस्कुराहट के साथ चेहरा झुका लेते थे। चुड़ैल का खून खोल रहा था। खैर, तुम्हारा वो डियर कजन जो तुम्हारी वजह से हम सबके सरों पे मुसल्लत हुआ था, वो इसके बाद क्या करेगा तुम्हारे ख्याल में? तो तुम इसका ज़हन भी पढ़ सकते हो ना। आखिर हो तो तुम भी आधे कारदार। फारिन सर को तारीफी वसूल के अंदाज में खम दिया। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। और ज्यादा देर नहीं गुजरी थी जबकि फारिस ने सिर उठाया और यूं जैसे कोई आहट सुनना चाह रहा हो आ गए। इसने महजूद अंदाज में कहा। फिर सबकी मुंतज़िर सूरत देखकर बोला, किराए के गुंडे हमारे घर पे फायरिंग करने आ गए। तो पुलिस को कॉल करो फारिस, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लोग हमारे घर पे हमला करेंगे तो हमें हिफाजत चाहिए होगी। हिफाजत का बंदोबस्त आपका ये बेकार जेल याफ्ता 2 लोगों का कातिल शौहर पहले ही कर चुका है। कि इसके पास आप जैसी तेज जबान है ना जहानत व फितानत, वो बड़े अदब से बता रहा था। सो जब वो लोग आएंगे तो इस कॉलोनी के 4 मुख्तलिफ छतों पर मौजूद लोग अपने तमाम अहम औजार और हथियार लेकर निकल आएंगे और इन हमलावरों को शूट करेंगे, जिसके बाद वो हमारे घर पे फायरिंग नहीं कर सकेंगे। जुमर अब्बा भी दंग रह गए। फारिस, ये तो खून खराबे वाली बात हुई। जुमर तेजी खिड़की की तरफ लपकी में पर्दा हटाया। बाहर कॉलोनी की सड़क पे जीपें रुकती दिखाई दे रही थी। इनकी खुली छतों से राइफल्स और जदीद असले उठाए बैठे चंद हट्टे कट्टे अफराद साफ दिखाई देते थे। एक गेट और 4 दीवारी छोटी थी, सो ये मंजर साफ वाजे था। ऐसे मत करो फारिस, रोको इन लोगों को, ये गलत है। कोई मर गया तो कॉल करो इन्हें। वो बेचैनी से बोली। इसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दरख्तों से परिंदे एकदम से उड़े। खिड़की में खड़ी जुमर की रंगत फीकी पड़ी। फारिस, तुम अपने लोगों को मना करो, कोई गोली नहीं चलेगा। ये लोग हवाई फायरिंग करके वापस चले जाएंगे। अब देर हो चुकी है। मैं शूटिंग का ऑर्डर दे चुका हूँ। वो लोग अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं और आप खिड़की से हट आइए। ये ना हो कि मैं तीसरी दफा जेल चला जाऊं। वो कदम कदम चलता उसके साथ आ खड़ा हुआ। लॉन में खौफजदा सा सन्नाटा छा गया। हुनैन और सैम की मुस्कुराहटें गायब थी। अब्बा परेशान से हो गए थे और जुमर खिड़की से नहीं हट रही थी। फारिस, इन पे जवाबी शूटिंग मत करवाओ। तुम इनको कॉल क्यों नहीं करते? वो बेबसी भरे गुस्से से बोली। नजरें सामने वाली छतों पे जमी थी और यकायक करीबी 2 छतों पे चंद लोग नमदार हुए। जुमर का दिल जोर से धड़का। बाकी 2 छतें इस जगह से दिखाई न देती थी। उन्होंने बुलंद आवाज में कुछ कहते हुए नीचे से चंद हथियार उठाकर ऊपर किए और उनका निशाना जीप वाले घुसपैठियों की तरफ बांधा। जुमर धक से रह गई। इनके हाथों में असला नहीं था। इनके हाथों में जदीद फोटोग्राफी के आलात थे, वीडियो कैमरे, स्टिल कैमरे, माइक। चिच्चे कितनी कोई क्रिमिनल सोच सकती हैं आप जुमर बीवी? मैं तो फोटोशूट की बात कर रहा था, आप क्या समझी? वो अफसोस से कह रहा था। जुमर की चल नजरें वहीं पे जमी थी। छतों पे इकट्ठे हुए रिपोर्टर्स धड़ाधड़ फोटोग्राफी कर रहे थे, गोया लाइव कवरेज कर रहे हों। इनके अंदाज ने गली में रुके खड़े असला उठाए, दिन की रोशनी में बगैर कोई नकाब पहने किराए के गुंडों को बौखला दिया था। उन्होंने फायरिंग रोक दी। चेहरे घुमाकर इधर उधर देखा। हड़बड़ाहट सी मची। किसी ने नीचे होने को कहा, किसी ने अंदर बैठने को। टायर्स हरकत में आए। सड़क पर रगड़ने की तेज आवाज के साथ गाड़ियां जन से वापस हुई। चंद लम्हों में वो गायब हो चुकी थी। ऐसी वारदातें अमूमन फरारी मुजरिमों से कराई जाती हैं। फरारी किसी से नहीं डरता, ना पुलिस से, न मासूम शहरियों से। वो सिर्फ किसी के साथ देख लिए जाने से डरता है। इसके दुश्मन जान जाएंगे कि वो किन लोगों के साथ आजकल रह रहा है। वो सिर्फ इसी बात से डरता है। और ये चंद नए रिपोर्टर्स जिनको अपना करियर बनाने के लिए एक चटपटी खबर की तलाश थी, ये हर वक्त यहाँ मौजूद नहीं होंगे, मगर कारदार जब किसी को यहाँ भेजने का खतरा नहीं मोल लेंगे। हमें दोबारा डराने का मतलब होगा किस्से को मजीद मशहूर करना। वो संजीदगी से कहता। अब लाउंज में टहल रहा था। अब्बा कदरे पुरसुकून थे। उन्होंने मुस्कुराती नजरों का तबादला किया और जुबुर लब बीचे संजीदा से खड़ी थी। उदम्बर आदमी। अब क्या करेगा वो? जुमर फारिस के मुकाबले खड़ी हुई और सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से पूछा। शायद कुछ छोटे मोटे काम। निशाने उचकाए, जैसे हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे करवाना, मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें देना। मगर मैं वसूख से नहीं कह सकता कि वो ये सब करेगा। शायद वो खामोशी से इंतजार करना मुनासिब समझे। वो चाहेगा हम इल्जाम लगाने में पहल करें। और यहाँ पे मैं साथी और इसके इंसाफ वाले आइडियलिज्म से मुतफिक नहीं हूँ, मगर हमें ही इल्जाम लगाने में पहल करनी होगी।
फारिस ने गहरी सांस ली और मोबाइल स्क्रीन के सामने की। मैं इतनी देर से इस वीडियो को मुख्तलिफ जगहों पे भेज रहा हूँ। ये वीडियो सादी ने 2 रोज पहले बनाकर भेजी थी। मेरा नाम है सादी यूसुफ। पिछले आधे घंटे में इसके 2500 व्यूज आ चुके हैं और जल्द ये टीवी पे होगी। स्क्रीन पे दूर से नजर नहीं आया कि वो कौन सी वीडियो थी और फारिस ने मोबाइल वापस मोड़ लिया, मगर सब बेचैन हो गए थे। सादी घर क्यों नहीं आया? अभी तक दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ इसका। वो खफगी से बड़बड़ाया था। तो अब तुम्हारा डियर कजन कोर्ट में जाने का इंतजार करेगा, उसी तंजी अंदाज में बोली। हाँ, वो खामोशी से ट्रायल का इंतजार करेगा क्योंकि वो इसे जीत कर नौशरवा को बाइज्जत बरी करवा लेगा अगर कोई ट्रायल हुआ भी तो। क्यों? सैम को बुरा लगा। हुनैन भी हैरत से उसे देखने लगी। मेरी बेगम से माजरत के साथ, मगर इसलिए कि वो ज्यादा अच्छा वकील है। अब वो टांग पटांग जमा कर पीछे होकर बैठा तो जुमर पैर पटक कर मुड़ी। मैं जो इतने माँ ख्वार हुई उसको भी इंसाफ दिलाया, मगर नहीं, उसको हीरो बनना होता है आखिर में। और चंद कदम दूर हो गई, फिर रुकी, आंखों में चमक उभरी, लब मुस्कुराहट में ढले, वापस मुड़ी। थैंक यू फारिस, तुमने हर चीज इतने अच्छे से प्लान की, हर मसले का हल निकाल कर रखा, थैंक यू। इसके बदले अंदाज पे फारिस ने मशकूक अंदाज में अबूर उठाया। यू आर वेलकम, और तुम्हारी इस अनथक मेहनत को देखते हुए मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया है। किस चीज के लिए? वो हनूज मशकूक था। शादी को मारने के लिए। फिर बाकी सबको देखा। ओ, तुमने नहीं बताया किसी को कि जब तुम इससे कैंटीन में मिले थे तुमने उसको कितनी बुरी तरह से मारा था, और उसके मुंह पे वो जख्म भी तो नहीं दिया था, मगर खैर तुम गुस्से में थे, माफ किया। चुड़ैल ना हो। तो वो खफगी से उसे घूरता सीधा होकर बैठा। हुनैन, सैम और अब्बा एकदम उसे देखने लगे थे बेयकीन तफ्तीशी नजरों से। चलो जी, सारी कारकर्दगी में पानी फिर गया। तब तक जुमर मुस्कुरा के आगे बढ़ गई थी, वो भी जाने को उठा। मामू। सैम ने सदमे और गुस्से से उसे देखा। हुनैन भी आस्ती मुड़कर उठ खड़ी हुई। 1 मिनट, जरा हमारी बात सुने पहले। झूठ बोल रही है वो। अस्तगफिरुल्लाह। वो भी चौताप खाता उनकी नजरों से बचता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, इससे पहले कि मोरचाल की चूटियां उसे नोच खाएं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, आ मुझसे तुझे वो शिकवा बेजा भी नहीं। अगली सुबह तक कोई खातिर ख्वाह वाकया पेश ना आया। किसी बड़े तूफान से पहले का सुकून सारे में छाया हुआ था। हाशिम और जवाहरात हारून के साथ ऑफिस में बैठे आइंदा का लायामल तय कर रहे थे। नौशरवा अपने कमरे में मोबाइल बंद करके सर मुंह में लपेटे पड़ा था। हाशिम ने उसे पेशकश की कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, मगर वो राजी नहीं हुआ। मेरे दोस्त, मेरा सोशल सर्कल, वो सब समझेंगे कि मैंने ये किया है, कि मैं भाग रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। मुझे कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता। नुदरत मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट में 3, सैम और हुना भी उधर आ गए थे। बाहर फारिस के पहरेदार मौजूद थे। शादी की वीडियो सोशल मीडिया पे फैल रही थी, मगर इतनी तेजी से नहीं कि मीडिया वाले इनके घर आ पहुंचे हैं। सो अभी तक सुकून था, सुकूत था। फूडली एवर आफ्टर में ग्राहकों की आमद शुरू हो गई थी। ग्राहकों की आमद शुरू थी। हुनैन काउंटर से दूर कोने की मेज संभाले लैपटॉप को ले बैठी थी। मेज पे अलीशा का की चेन रखा था और साथ ही टूटी हुई मोरचाल की तख्ती। एक नजर उस तख्ती पे डालकर अब वो स्क्रीन को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर खूबसूरत तख्तियों को सर्च किया। बहुत से इमेज खुल गए। तस्वीर की वो तात ना उनको देखी गई। नित नए डिजाइन, रंग, दरमियान में एक कदावर आईने की तस्वीर भी नजर आ रही थी। इसने यूं ही इस पे क्लिक कर दिया। तस्वीर की जगह इस आईने की वेबसाइट खुल गई। हुनैन यूसुफ ने सुन रखा था कि स्नो वाइट की कहानी में एक जादुई आईना था जो मलका से बात करता था। इसने इस जम के मुतालिक भी सुन रखा था जो बादशाह जमशेद को पूरी दुनिया दिखाता था, मगर इसे नहीं इल्म था कि गूगल पे खुलने वाली वेबसाइट इसके लिए एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देगी। वो होम डेकोर की एक वेबसाइट थी और जो सफा इसने खोल रखा था इसमें बताया जा रहा था कि छोटे से कमरे को कैसे सजाकर खूबसूरत बनाया जा सकता है, कैसे दुनिया भर के रंग और फूल इसमें भरे जाते हैं। शहद की वो मक्खी बेख्तियार आगे हुई और आंखों में खुशगवार तहियर भरे इन रंगों को दिख गई जो एक घर को सलीका और सजावट अता करते दिखाई दे रहे थे। वाह, हर दूसरी तस्वीर पे इसके लबों से निकल रहा था। ऐसा ना था कि इसने अच्छे घर ना देखे थे। कोरियन और टर्किश ड्रामों के घर वो देखती आई थी, मगर इस नजर से नहीं देखे थे। कैश काउंटर के साथ खड़ा फारिस जुनैद से कुछ पेपर्स लेके देख रहा था। अकाउंट्स वगैरह का हिसाब। नुदरत मार्केट गई थी घर की माहाना ग्रोसरी लेने, और रेस्टोरेंट के मुलाजमीन ये फर्ज कर चुके थे कि आइंदा इनका नया बॉस वही होगा। शायद वो खुद भी ये तय कर चुका था। दफतन रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी में है कि इसकी नथनों से टकराई। फारिस ने चौंक कर चेहरा उठाया। वो मुस्कुराती हुई इस तरफ चली आ रही थी। सफेद लंबा कोट पहने और बाल सुर्ख स्कार्फ में लपेटे, माथे से चंद सुर्ख लटे निकाले, कोनी पे डिजाइनर बैग अटकाए, वो एक मेज की कुर्सी खींच कर बैठी और बिल्ली जैसी आंखें दोबारा झपका कर उसे देखा। फारिस ने बेख्तियार दूर बैठी उना को देखा। वो लैपटॉप में गुम थी। फिर वो उसके सामने आ बैठा। कैसी हैं आप? संजीदगी से पूछा, साथ में बगौर इसके चेहरे के तासुरात भी देख रहा था। नाराज हूँ, वो बच्चों के से अंदाज में खफा होकर बोली। फारिस ने गहरी सांस भरी। तो यहाँ क्यों आई हैं? आपने कहा था मेरे बाबा का नाम नहीं आएगा इस केस में, फिर सादी यूसुफ इनका नाम क्यों ले रहा है? मैंने कहा था इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम ये केस नहीं जीत सकते, सो किसी का नाम भी नहीं
آنا چاہیے، فرق نہیں پڑتا اور کچھ۔ اس کا لہجہ خشک ہو گیا، وہ چند لمحے چپ رہی۔ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر کیوں آئے؟ مجھے کہہ دیتے، کیا میں رکاوٹ ڈالتی؟ خاموشی سے چلی جاتی۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ کم از کم مجھے یہ تاثر تو نہ ملتا کہ جیسے میں آپ پہ مسلط تھی، میں تو صرف آپ کی مدد کر رہی تھی یا شاید استعمال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ میں خیر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، آنکھوں میں ہنوز اداسی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی میں ایک فون کال کر کے آپ کو بلا لوں اور آپ چلے آئیں۔ مس آبدار، میں ایک اپنی مرضی کا مالک، 36 سال اور 6 فٹ کا 1 انچ کا مرد ہوں۔ 6 فٹ اور 1 انچ کا مرد ہوں۔ میں اس طرح بلانے پہ نہیں آیا کرتا۔ سنجیدگی سے ٹھہر کر اسے کچھ سمجھایا اور پھر مسکرائی۔ وہ تو آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے چیلنج نہ کریں کیونکہ میں ایسا بہت کچھ کر سکتی ہوں جس کے بعد آپ دوڑے چلے آئیں گے۔ خیر، اس کے جواب سے پہلے اس نے سر جھٹکا۔ مجھے مدد چاہیے آپ کی۔ وہ جو ناگواری سے کچھ کہنے لگا تھا رک گیا۔ ہاشم نے مجھے پرپوز کیا ہے اور وہ نہ نہیں سننا چاہتا۔ اس کا انداز سنگین تھا۔ تو آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اس سے؟ وہ چونکا تھا مگر پھر عام سے انداز میں پوچھا۔ وہ اچھا ہے، میرا دوست ہے، مگر اس کی سنہری آنکھوں پہ آنکھیں جمائے وہ نرمی سے بولی، مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ فارس نے بہت دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس کسی کو آپ نے بتایا کہ آپ اس سے؟ وہ جانتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے۔ وہ اب کے چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ فارس نے بدقت چہرے پہ چھایا نارمل تاثر برقرار رکھا۔ ہاں، ابھی اس کسی اور کی بیوی ادھر ہوتی تو تمہیں بتاتی۔ تو کیا آپ کیا کریں گی؟ سرسری سے پوچھا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ہاشم کو بتا دوں اس کسی اور کے بارے میں؟ کیا یوں وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ آبدار، وہ ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں دھیما سا بولا۔ ہاشم میرا کزن ہے، میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اپنے اور اس کے درمیان کسی تیسرے کو مت لائیں، اسے مت اکسائیں، اس کو اس کی وجہ سے ریجیکٹ کریں، اپنی وجہ سے نہیں۔ اور اگر وہ نہ مانا تو ظاہر ہے وہ نہیں مانے گا، تو آپ کسی ایسے شخص سے اس پر دباؤ ڈلوائیں جو اس پہ روک رکھتا ہو، اور میرا خیال ہے آپ ایسا کر سکتی ہیں کیونکہ آپ اس تیسرے شخص کے ان احکامات سے بھی واقف ہیں جن سے ہاشم نہیں ہے۔ اوہ، آبدار کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ میں سمجھ گئی۔ خیر، ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں کیا؟ نہیں، آپ اب جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق آپ کو نقصان دے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی دفعہ میں بلاؤں تو آئیے گا ضرور، ورنہ میں نے کہا نا مجھے بلانے کے سارے طریقے آتے ہیں۔ آبدار مسکرا کر کہتی اٹھی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ناخوش سا کھڑا کچھ سوچتا رہ گیا۔ چند فرلانگ دور ایک کیش اینڈ کیری اسٹور کے اندرون کے وقت بھی سفید تیز بتیاں روشن تھیں۔ ندرت یوسف ٹرالی لیے اشیاء خوردنوش کے ریکس کے ساتھ چلتی جا رہی تھیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ فاصلے سے، احتیاط سے، ریکس کی لمبی قطار کے آخر میں وہ اوٹ سے نکل کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ سر پہ کیپ، گلاسز اور بڑی شیو نے سادی کا چہرہ قدرے مختلف بنا رکھا تھا۔ اس کی زخمی نظریں ندرت کے تعاقب میں تھیں۔ وہ اس سے چند قدم ہی دور تھی۔ اس طرف ان کی پشت تھی۔ فربئی مائل عام سے گرم سوٹ میں ملبوس تھیں۔ شال سر پہ لے رکھی تھی۔ سویٹر حسب عادت بنا آستین والا تھا۔ وہ کبھی آستین والا سویٹر نہیں پہنتی تھی۔ ایک ہاتھ میں جہیز کے 2 کنگن تھے جو ہر موسم میں ہر وقت پہنے رکھتی تھیں۔ کن پٹی اور ماتھے سے ذرا سفید بال جھلک رہے تھے۔ آنکھوں کے حلقے بڑھ گئے تھے۔ بار بار رکتیں، کچھ یاد کرتیں، پھر کوئی شے اٹھاتیں۔ شاید وہ چیز بھولنے لگی تھیں، شاید ذہنی طور پہ بہت الجھی رہنے لگی تھیں۔ وارڈ سے ان کو دیکھے گیا، چھپ کر نرم آنکھوں سے۔ وہ اب ایک ریک کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ یاد کر رہی تھیں۔ کیا رہ گیا؟ اب گھر پہنچ کر یاد آئے گا۔ وہ خود سے خفا تھیں۔ وہ اوٹ سے نکلا اور قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ پشتیاں کھڑی تھیں۔ وہ ٹرالی کے سر پہ آ کھڑا ہوا، ایک نظر سامان پہ ڈالی، پھر سامنے والے ریک سے مایونیز کا بڑا جار اٹھا کر ان کی ٹرالی میں رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ندرت نے کسی کو جار رکھتے دیکھا تھا، سو فوراً گھومی، جار اٹھا کر دیکھا۔ ہاں، یہی تو بھول گئی تھی میں۔ سر اٹھایا، متلاشی نگاہ دوڑائی، کوئی نہیں تھا آس پاس سوائے گاہک اور ورکرز کے۔ کچھ دیر حیران ہوئی مگر شاید کسی ورکر سے مانگا تھا انہوں نے، تبھی اس نے لا دیا ہوگا۔ خیر، ٹرالی دھکیلتی آگے بڑھ گئی۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جواہرات اپنے لان میں آرام دہ کرسی پہ نیم دراز دھوپ سینکتے ہوئے موبائل کان سے لگائے نخوت اور ناگواری سے کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے مسز عباد، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جائیداد کا تنازع ہے۔ چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتیں، ورنہ میرا شیرو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، پرندے کا بچہ نہیں مار سکتا وہ۔
रुक कर कुछ सुना, नागावारी से चेहरा सिया हो गया। शूटिंग क्लब का मेंबर होने का ये मतलब नहीं है कि इसने शादी को शूट किया, ये तो इसका टैलेंट है, आर्ट है। 2-4 बातें मजीद कहकर सुनाकर उसने चिल्लाकर फोन बंद कर दिया और साथ रखी मेज पे डाल दिया। नाक चढ़ाए कोफ से सर झटका। ये जरा जरा से लोग। आंटी, दूर से चेकार सी सुनाई दी। जवाहरत ने लंबी कुर्सी पे नीम दराज गर्दन मोड़ी। सब्जदार के दूसरे दहाने से आबदार चली आ रही थी। सूरजमुखी के रंग का लंबा फ्रॉक पहना, बाल सुर्ख रुमाल में बांधे, कोनी पेट की बास्केट में ढेरों फूल लिए वो इस वक्त वाकईतन रेड राइडिंग हुड लग रही थी। जवाहरत के चेहरे के जाविये सीधे हुए, मुस्कुरा कर उसे हाथ हिलाया। कैसी हैं आप आंटी? ये फूल है आपके लिए लाई हुए, आपके अपने बागीचे से तोड़कर। दूसरी लंबी कुर्सी पे बैठते हुए इसने बास्केट दरमियानी मेज पे रखी। सफेद गुलाबी चेहरा सरमा की धूप की तमाशा से दहक रहा था, मगर आंखों में मुस्कुराहट थी। मैं ठीक हूँ नहीं, तुमने इतने अरसे बाद शक्ल दिखाई। यूं ही नीम दराज अपना अंगूठियों वाला हाथ बढ़ाकर उसका हाथ दबाती प्यार से बोली। गहरी आंखें उसके शफाफ चेहरे पे जमी थी। बस आंटी, मुझे तो इस फंसी की फिक्र है। वो तोबा वाले अंदाज में कानों को छुकर बोली। सुना है वो अभी तक श्रीलंका में गायब है, पुलिस उसी को तलाश कर रही है। लेकिन आंटी, मैं तो सोचती हूँ कि वो ना ही मिले तो अच्छा है, वरना हाशिम तो उसको देखते ही 7 गोली मार देगा। क्यों? जवाहरत चौकी। ये देखें, इस फसी ने भी कैसी गद्दारी के साथ हाशिम के साथ। इसने बड़े से नोट की स्क्रीन पे चंद बटन दबाकर उसे जवाहरत के सामने किया। स्क्रीन पे चलते मंजर को देखकर आरामदेह कुर्सी पे नीम दराज जवाहरत के रंग फक हो गया। वो ऑफिस चेयर पे बैठी तहक्कुम से फंसी को हिदायत देती नजर आ रही थी। सादी और खावर के कत्ल की। जवाहरत ने चौंक कर आबी को देखा। वो इस अंदाज में बोली जा रही थी। कैसा हौलनाक काम किया फसी ने। हाशिम की पीठ पीछे इसके मेहमानों को मारने का सोचा। हाशिम के प्लान्स थे अपने मेहमानों के बारे में, फसी ने उनको खराब कर दिया। तभी तो वो दोनों भाग निकले और स्कैंडल शुरू हुआ। जब हाशिम को मालूम होगा कि फसी इसका जिम्मेदार है तो वो तो फसी की जान ले लेगा, इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। जवाहरत पे नजरें जमाए वो मासूमियत से कह रही थी, इस पे कभी एतबार नहीं करेगा। हाशिम को फसी की समझ से कितना दुख पहुंचेगा आप समझ सकती हैं ना। मुझे तो फसी की बहुत फिक्र है, इसलिए प्लीज आप ये सब हाशिम को नहीं बताइएगा, वरना वो तो फसी से अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। फसी नामा सुनाकर वो नोट वापस पर्स में डालती उठ खड़ी हुई। अरे हाँ आंटी, हाशिम ने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं चाहती, और आपको पता है कि मैं कितनी क्यूट हूँ। आपके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहती हूँ। अब हाशिम को इस इरादे से सिर्फ आप ही बाज रख सकती हैं, तो समझा दीजिएगा इसे। ओके, मैं चलती हूँ, आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। झुककर जवाहरत के गाल से गाल मस करके चूमा, मुस्कुराकर सीधी हुई और हाथ हिलाती वापस जाने को मुड़ गई। जवाहरत अपनी जगह से हिली तक नहीं, यूं ही नींद दराज पड़ी रही। इसका चेहरा फख्ता और आसाब शल। फिर धीरे से इन आंखों में सुर्खी उतरी। एकदम जोर से हाथ मारकर इसने बास्केट उलट दी। सारे फूल सब्ज़ार पे बिखरते चले गए। वो जर्द गुलाब थे, दुश्मनी की अलामत। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब न खोला जाएगा। थाने के इस वसी और इस हॉलनुमा ऑफिस में हीटर चल रहा था। एसएचओ अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था और कलम हाथ में घुमाता संजीदगी मगर कदरे बेनियासी से सामने बैठी जुबर को देख रहा था। वो टांग पे टांग जमाए इतने ही सुकून से पीछे होकर बैठी थी और तंद निगाहें एसएचओ पे जमी थी। सेक्शन 161 CRPC के तहत आप हमारी इस पुरानी एफआईआर में ये मेरा बयान रिकॉर्ड करें ताकि मैं मुलजिमों को नामजद कर सकूं। जुमर साहिबा, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि वो हाथ हिलाते हुए समझाने वाले अंदाज में आगे को हुआ। मैं यूं बिना किसी सबूत के कारदार खानदान की किसी फर्द का नाम एफआईआर में नहीं डाल सकता। मैं आपको सबूत तो क्या एक वजाहत देने की पाबंद भी नहीं हूँ, क्योंकि 161 CRPC के तहत ये मेरा हक है। वो भी इतनी ही रुखाई से बोली। आप तहमुल से मेरी बात सुने। एसएचओ की बात मुंह में रह गई। एकदम से ऑफिस में बहुत से लोग दाखिल हुए थे। एसएचओ खड़ा हो गया। जुमर ने गर्दन मोड़ कर देखा, फिर गहरी सांस भरी। वो सर पे चादर लिए, कीमती हीरे की अंगूठियां उंगलियों में पहने, डिजाइनर बैग उठाए। बाबा करसी खातून जानी पहचानी थी, चतराल से ताल्लुक रखने वाली सियासतदान जिसका स्कैंडल पिछले दिनों जवाहरत कारदार ने मशहूर करवाया था, और वो अकेली नहीं आई थी। वकला और गार्ड हमरा थे। इसके लिए फौरन से कुर्सियां बिछाई गई, अमले की दौड़े लग गई। कोई चाय लाने भागा, कोई बेकरी की तरफ। क्या आप इनका बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे? जुमर के करीब कुर्सी पे बैठकर वो उंगली गाल पे रखे नर्म मुस्कुराते अंदाज में पूछने लगी। एसएचओ ने सवालिया नजरों से जुमर को देखा। ये मेरे किराएदार हैं, खातून ने ताल्लुक बताया। जुमर खामोशी से बैठी उंगली पे लट लपेटती रही। और मैं चाहती हूँ कि आप इनकी एफआईआर में नामजद मुलजिम का नाम दर्ज करें। क्या नाम था इसका? हाँ, नौशीर कारदार। सिर्फ यही नाम या कोई और भी लिखवाना है? अपना यद भरे अंदाज में चेहरा जुमर की तरफ मोड़कर पूछा। जुमर मुस्कुराई। मुस्कुराते मुस्कुराते खातून की तरफ देख झुकी। थैंक्स। इससे पहले कि वो वेलकम कहती है, जुमर की मुस्कुराहट सिमटी। मगर नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये मेरी एफआईआर है, मैं इसे खुद ही देख लूंगी।
تلخی سے فکرہ مکمل کیا۔ ایس ایچ او خاموشی سے تماشا دیکھنے لگا۔ خاتون ذرا سا مسکرائیں، مگر کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگا بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے اپنے وکلا کو کیس میں شامل کرنے کو کہیں گی۔ کل کو یہ وکلا آپ کی مرضی کے سامنے کیس کو لے کے جائیں گے۔ بھاری رقم اور پبلک میں آ کر معافی مانگنے کی شرط یہ ان کو معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ آپ ان کی حزمیت چاہتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کیس استعمال کرنے نہیں دوں گی۔ یہ ہمارا کیس ہے، ہم اکیلے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ صاحبزادی صاحبہ، ہم اکیلے ہی لڑیں گے، کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صاحبزادی صاحبہ نے مسکرا کر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ ان ایس ایچ او صاحب کو راضی کیسے کریں گی نئے ملزم کا نام ڈالنے کے لیے؟ میں کیا کروں گی؟ اس نے گھنگرالی لٹکان کے پیچھے اڑستے ہوئے مسکرا کر ایس ایچ او کو دیکھا۔ میں یہاں صرف فارمیلٹی کے تحت آئی تھی، اور اب میں سیدھی پولیس کی ہائی کمان کے پاس جاؤں گی۔ آئی جی صاحب کی بیٹی میری بھتیجی کی دوست ہے، میں ان سے شکایت کروں گی۔ آئی جی صاحب کے میں نے کورٹ میں چند کام کر رکھے ہیں، ایک کال میں ان کو بھی کر دوں گی۔ پھر میں اپنے پران ٹیچر ایک سیشن جج کے سامنے سیکشن 22C کے تحت پیٹیشن فائل کروں گی، یا صرف اپنی ایک بہت اچھی دوست مجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دوں گی۔ 48 گھنٹے کے اندر نوشروہ کاردار کے نام FIR میں درج ہوگا۔ میرے پاس کام کروانے کے بہت طریقے ہیں، مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ آپ آئیں۔ آپ کا شکریہ، میں چلتی ہوں۔ اپنے مدعے کو اپنے مخصوص انداز میں زومرائز کر کے وہ پرس اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مڑتے مڑتے سر ہوں کے انداز میں جھٹکا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ مجھے؟ اتنے سال کورٹ میں جھک ماری ہے کیا میں نے؟ کیوں لپٹا ہے میرے ساتھ یہ دریا؟ آخر مجھ کو گرداب سے آگے بھی کہیں جانا ہے۔ اگلی دوپہر قصر کاردار کے ڈائننگ ہال کی طویل میز پہ کھانا کھانے ہاشم اکیلا بیٹھا تھا۔ چند مہمانوں کی متوقع آمد کے باعث وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ نوشروہ کو بلا بھیجا، مگر میری نے واپس آ کر مایوسی سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھوک نہیں ہے کہا تو ہاشم سر چھلک کر کھانا کھانے لگا۔ یہ تب ہی تھا جب بیرونی دروازے سے سینڈل کی مخصوص ٹک ٹک سنائی دی۔ چہرہ اٹھائے بغیر ہاشم جانتا تھا کہ نوارد کون ہے۔ اندر تک کرواہٹ پھیل گئی۔ ہیلو ہاشم، شہری مسکراتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔ ہاشم نے تلخ تاثرات والا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں میرے گھر آنے جانے کی اوقات کی خبر کون دیتا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کے قریب ہاتھ معدبت سے باندھے کھڑی فیونا نے فوراً گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ مجھے تو تمہاری دوسری بھی کئی مصروفیات کی خبر ہے، وہ طنزیہ سا کہتی اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ سنہری بالوں کی اونچی پونی بنائے، چپکلی کے ڈیزائن والے لمبے آویزے پہنے وہ حسب معمول خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ سنا ہے تم شادی کر رہے ہو، سونے کو منا بھی لیا؟ واہ! آنکھیں اس پہ جمع کر طنزیہ بولی۔ ہاشم نے ابرو کے اشارے سے ملازموں کو جانے کا کار اکتا کر کھانا ختم کرنے لگا۔ ویسے تم ہمیشہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ اور شادی ٹوٹنے کا الزام میرے سر لگاتے رہے اتنے سال۔ تم کیوں آئی ہو؟ میرا نام سعدی یوسف دیکھنے کے بعد میں گھر بیٹھ سکتی ہوں؟ ویسے اب تک تو تم پہ واضح ہو چکا ہوگا کہ میں نے نہیں، فارس نے وہ ویڈیو ریلیز کی تھی جج والی۔ مجھے تو سعدی نے یوں ہی درمیان میں پھنسایا تمہارا دھیان بچانے کے لیے، سب جانتا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ اگر یوسف واقعی تمہارے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب مجھے سب پیانا کیا جائے گا تو میں عدالت میں کیا کہوں گی؟ آخر میرے سامنے بھی اعتراف کیا تھا نا شیرو نے سعدی کو گولیاں مارنے کا۔ وہ اسی وقت زینے اترتا نیچے آیا تھا۔ کھلے دروازے کے باعث شیری کی آواز کان میں پڑ گئی۔ پہلے ہی اب ترلیے میں تھا، ملٹی ٹی شرٹ اور شارٹس۔ ان الفاظ پہ تو چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تیزی سے سامنے آیا۔ تم اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں کوئی پسند کرتا یا تم سے کوئی دوستی کرتا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اسے شوٹ کیا تھا، اور اگر تم نے شیرو، ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا اور وہ باوجود غصے کے چپ ہو گیا۔ شہری نے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک دم تو تیز نظر شیرو پہ ڈالی۔ میں کس قابل ہوں تمہیں کورٹ میں معلوم ہوگا، کیونکہ ڈیڈی نے مجھے 10 منٹ پہلے بتایا ہے کہ کورٹ آرڈرز کے بغیر زمر نے FIR میں تمہیں اور ہاشم کو نامزد کر دیا ہے۔ تھینک یو شیری، تم جا سکتی ہو، ہاشم نے سختی سے کہا تو وہ پرس اٹھا کر مڑی اور آگے بڑھ گئی۔ شیرو نہیں بیٹھا، شل سا کھڑا رہا، پھر بے یقین نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ میرا نام؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی تاریخ ملے گی، نہ کوئی تمہیں گرفتار کرے گا۔ کھانا کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ۔ اور اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی شیرو پیر پٹکتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہاشم نے نیپکن زور سے پرے مارا اور پلیٹ دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لاؤنج تک آیا ہی تاکہ بیسمنٹ کی سیڑھیوں کا دروازہ کھل کر باہر آتی علیشا دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرالی کا بیگ ہینڈل بیگ تھا جسے وہ ساتھ ہی گھسیٹ رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ کر رکا۔ کیا تم واپس جا رہی ہو؟ علیشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کھڑی اور چپتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ جی،
मैं कभी ना आने के लिए वापस जा रही हूँ। चबा चबा कर वो कहने लगी, मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों से अपनी महरूमियों का इंतकाम लेने की, आपको ज़लील करने की, अपना जायज़ पैसा आपकी मुठ्ठियों से नूच लेने की, मगर मैं हर दफ़ा नाकाम हुई क्योंकि मैं अकेली थी और क्योंकि मेरे अंदर फारिस जितनी हिम्मत नहीं थी। ना मैं शादी की तरह बहादुर हूँ, मेरा मकसद सिर्फ पैसे का हुसूल था और वो मुझे नौशेरवा ने शेयर्स वापस लेते हुए काफ़ी कसरत से दे दिया है। और नहीं, अभी मैं एयरपोर्ट नहीं जा रही, मैं होटल जा रही हूँ। मैं 1-2 दिन मज़ीद शहर में रुक कर एक आखिरी काम करना है। परेशान मत हो, आपको तबाह करने का कोई काम नहीं, ये सब यूसुफ कर लेंगे, मैं तो हूँ पैसे के पीछे। तो एक आखिरी चीज़ ढूंढ लाऊँ आपके पास, फिर इसकी कीमत आप खुद लगाएंगे। एक सांस में कहकर वो एक ज़ख्मी निगाह इस पे डालती आगे बढ़ गई। हाशिम उसे घूर कर जाते देखता रहा। एक वीडियो क्या रिलीज हुई, हर एक की इतनी औकात हो गई कि वो यूं चढ़ कर इससे बात करे। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।